Please put your hands together for Zahra Yusuf. اقبال کا کہا مانا فاقوں پہ بس کرتے رہے، جھکنے والوں نے رفعتیں پائی، ہم خودی کو بلند کرتے رہے. یہ شعر آج کے معاشرے کی بھرپور عکاسی کرتا ہے. اس لیے سرمایہ دار طبقوں نے عظمتیں حاصل کری اور خود دار و ندار دو وقت کی روٹی کو ترستے رہے. اگر آج کے معاشرے میں نظر دوڑائی جائے تو ہمیں یہ معاشرہ بھوک و افلاس، غربت، جھوٹ، گروہ بندی اور سب سے زیادہ رشوت اور سفارش میں مبتلا نظر آئے گا. خاص طور پر رشوت اور سفارش. ان دو چیزوں کی وجہ سے بہت سے مستحق لوگ، اہل لوگ ملازمت حاصل کرنے سے ناکام ٹھہرتے ہیں، جبکہ انہی دو چیزوں کی دستیابی کے باعث بہت سے نااہل لوگ ملازمت حاصل کرنے کے مستحق ٹھہرائے جاتے ہیں. افسوس اس زمن میں ہم اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کو یکسر فراموش کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے فرمایا الراشی المرتشی الہما من النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم کی آگ میں ہیں. صدر محدثین اگر ہم تاریخ پاکستان پہ نظر دوڑائیں تو مسلمان جو خواب غفلت سے بیدار ہوئے، اس میں سب سے بڑا کردار ہمارے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا تھا. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنے بیٹے کو کچھ یوں نصیحت کی تھی، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرق کے احسان، اٹھانا شیشہ گرانے فرق کے احسان، صفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. اور پھر اقبال نے نوجوانوں کو درس دیا کہ وہ علم حاصل کریں تاکہ دنیا انہیں اپنا استاد مانے، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اقبال کی نظر میں جن لوگوں کے عزم میں ریاضت، نظم میں بلندی اور کچھ کرنے کا حوصلہ ہو، وہ دو چار منزلوں پہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ان کا عزم انہیں ہر لمحہ انہیں سرگرمیوں میں لانے پہ مجبور کرتا ہے. اور اس تمام منزل کو پانے کے لیے مسلمانوں کو ایک ہوگا. مگر آج کل مسلمانوں کے اختلافات دے کر روح اقبال تڑپ اٹھتی ہوگی، اور ایک ہی آواز جو مسلسل مقبرہ اقبال سے بلند ہو رہی ہے وہ یہ ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ہے، ہر پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے. اگر ہم آج کے نوجوان میں نظر دوڑائیں تو اقبال کا نوجوان جسے اقبال نے شاہین سے تشبیہ دی تھی، جسے اقبال نے ستاروں سے آگے جانے کا درس دیا تھا، جسے اقبال نے کاش گڑھ تک کی سرزمین کی ذمہ داری سونپی تھی، وہ ہمیں شاہین تو کیا گڑھ سے بھی بدتر لگتا ہے. آج کے نوجوان کے کانوں میں بال، گالوں میں لال، چال میں عیاری، سوچ میں مکاری، مشغلے میں بیکاری اور ذہن میں حرکت 2012 ماڈل کی گاڑی. یہ نوجوان تو کبھی بھی اقبال کا خواب نہیں تھا، مگر اس سب کا سارا قصور نوجوان نسل کا نہیں ہے. یہ سب باتیں نوجوان نسل نے اپنے ارد گرد کے معاشرے میں موجود لوگوں اور دولت کی لالچ میں گرفتار ہوتے سیکھی. علامہ اقبال انہوں نے خودی کا ہمیں عزم کا سبق پڑھایا تھا. علامہ اقبال نے خودی کا ایسا بے مثال سبق پڑھایا کہ اپنوں نے بھلا دیا اور غیروں نے اپنا دیا. اقبال نے تڑپ کر کہا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. مگر آج اقبال کو اپنا آئیڈیل کہنے والے یہ آواز لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں. ہر داڑھی میں تنکا ہے، ہر آنکھ میں شاہتیر، مومن کی نگاہوں سے بدلتی نہیں تقدیر، توحید کی تلوار سے خالی ہے انعام، توحید کی تلوار سے خالی ہے نیام، کٹتی نہیں اب ذوق یقین سے کوئی زنجیر. اقبال تیرے دیس کا میں کیا حال سناؤں. پھر اقبال نے نوجوان نسل کی گروہ بندی کا پہلے سے ذکر کر دیا، کردار کا، گفتار کا، اعمال کا مومن، قائل نہیں اس قسم کے جنجال کا مومن، سرحد کا ہے مومن کوئی بنگال کا مومن، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا مگر اقبال کا مومن. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. آج کا معاشرہ تمام برائیوں میں گھر چکا ہے، مگر ضرورت وقت یہ ہے کہ ہم تمام قسم کے اختلافات پہ قابو پائیں اور اقبال کے پیغام پر عمل کریں تاکہ امید روشنی بن کے معاشرے میں بکھر جائے. کون یہ سوچ سکتا تھا کہ اقبال کا نوجوان مسجدوں اور امام بارگاہوں میں بم رکھے گا، بیٹیوں کے سہاگ اجاڑے گا، ماں سے ان کے لگتے جگر اور
सुनेगा। आज जरूरत वक्त की जरूरत ये है, आज हमें करना ये है कि अपने तमाम इख्तिलाफात भुलाएं और पैगाम इकबाल को फैलाएं। शुक्रिया। कॉलेज से टीम आई थी जो कि बिना मुकाबला जीत चुकी है, उनको बहुत सारी मुबारक, और असगर अली जट साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन तीनों बच्चों को इनामात से नवाजें। हमारे अस्करी ला कॉलेज की टीम बिला मुकाबला जीत चुकी है, इनके मुकाबले की जो टीम है वो भाग गई है। आप लोग अपनी पिक्चर्स अल खलीक मूवी वालों से ले सकते हैं। थैंक यू सर। Please put your hands together for Rida Noor. इब्तदा है उस ज़ाते लम्गज़ल से जिसका विद समंदरों की लहरों पर जारी है, शरर के अंगारे में मौजूद है तो बसी फजाओं में है। इब्तदा है उस पाकीज़ा नाम से जिसने कहा कुन और कायनात मार्ज़े वजूद में आ गई। भीख मांगे कोई इंसान तो मैं चीख उठता हूँ, भीख मांगे कोई इंसान तो मैं चीख उठता हूँ, बस यही खामी है मेरे तर्ज़े मुसलमानी में। जनाबे सर, आज का मौज़े गुफ्तगू बहरानों में कौमें पैदा होती हैं या मर जाती हैं, पर बात करना उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के मुतरादिफ है। तारीख़ आलम शाहिद है कि जिन लोगों की शमशीरें जंगालूद हो गई और जिनकी उंगलियां ताउसर बाप के तारों पर रक्स करने लगे, वो लोग हमेशा दोस्तों इज्जत, मताए गैरत और शोहरत से महरूम हो गए। जिन लोगों ने कातिलों और सार के सारंगेजियों, हुस्न और रनाई की अतरबेजियों और सबकी जबलतों की हवस अंगेजियों पर सिपाहियाना जौहर निछावर कर दिए, शबे ज़फ़ाफ़ और हुस्न रुसी के इश्ताक़ में जुनून मैदाने का आज़ार को खैरबाद कह दिया, वो लोग हमेशा जुर्राफ़े के हदूद वुसअत से निकलकर तारीख़ की औराक में सिमट कर रह गए। अल कबीर की अबशारें, बगदाद की तबाही और कतबा गनाता के खंडात इस बात पर शाहिद है कि जो मस्ताब की अजीम रवायत से अपना रिश्ता तोड़ लेती है, सिपाहियाना सरकोशी के बजाय तनासानी और जंगी सरगर्मियों की जगह शतरंज के मोहरों को मिल जाती है, जब मुल्क के बजाय जाती मुफाद और मिल्लत के बजाय इनफादी मसले अजीज हो जाए, जब मौत से खौफ और जिंदगी से मोहब्बत हो जाए तो जिंदगी की तार छिन जाया करती है और इस तार के छिन जाने से बहरान पैदा होते हैं। मैंने जब निश्तरे फिक्र से माजी का सीना चाक करके बहरान को परखना चाहा तो मालूम हुआ कि सब तो खुदगर्ज लोगों की पैदावार है। जनाबे सर, बाज़ अरबाब दानिश ये दावा करते हैं कि बहरान एहसास मुरब्बत को कुचलते नहीं बल्कि एहसास लतीफ को जिला बख्शते हैं। हकीकत व बांगे दोहल अपनी सदाकत की गवाही दे रहे हैं कि अक़वाम मिलल को ज़वाले नताज से निकालने का सबब यही बहरान बनते हैं। मैं इस अटल हकीकत से भी गुरेज़ा नहीं कि बहरानों का पैदा होना न इंसानी सोच और न इंसानी तरक्की का बाइस बनता है। ये इंसान के ज़हन में नफरत और हकारत के बीच होने के बजाय फिक्र और नजर को जिला बख्शते हैं और इसका नतीजा साल्फी उल्फत और मुरब्बत को पैदा करने का सबब बनता है। बहरान अपने खुद की गठियां उलझा नहीं सुलझा जाता है और उसकी ज़हनी बलीगी और फिक्री तस्कीन का सामान हो जाता है। इंसान जब तक ठोकर न खाए तो संभलता नहीं, गलती न करे तो सीखता नहीं और जब तक कुछ खोता नहीं है तब तक कुछ पा नहीं सकता। अलाते हर्बो ज़रब ने इंसानी सुकून और करार को तो उबाला कर डाला है। इखलाकी अक़दार और रूहानी औसाफ नापैद हो गए हैं। आज इंसानी जानों को माले मुफ्त समझकर तोपर बमों के तहानों से तर्फ करना एक मामूली सी बात है। तोपर बमों के जरिए तैनात की तबाही और बर्बादी एक इशारे अब्दू से आ सकती है, जिसकी मिसालें जापान पर एटम बमों का गिरना और बेइंतहा जानी माली नुकसान होना है। लेकिन इसके बाद उन्होंने जिस अंदाज में तरक्की की वो अपनी मिसाल आप है। उन्होंने साबित कर दिया कि बहरान तो आर्जी होते हैं, इनसे नुकसान जरूर होता है लेकिन इसके बाद कौमें एक नए ताजा बलबले से जीती हैं और पहले से दुगनी तरक्की करते हैं। तारीख़ आलम पर निगाह दौड़ाकर देखें तो ये साबित होता है और रोज़े रोशन की तरह ये बात आया नजर आती है कि आज वही अक़वाम तरक्की याफ्ता है जिन पर बहरान आए और यूं तक जाने के बजाय वो अक़वाम पहले से दुगनी तरक्की कर गई। वो कौम चीनी हो या अमरीकी, जापानी हो या ईरानी, उन्होंने असरे नो तमीर करके साबित कर दिया कि बहराना में कौमें पैदा होती है ना कि मर जाती हैं। बहरान पे रहम है ना कि रहमे दिल। ये तकदीर की मानी बेहिस है या तकदीर की तरह हसास, ये पत्थर की तरह सख्त है या ना कि गुल की तरह नाजुक, ये चीते की तरह रसीला है ना कि शहद की तरह मीठा, ये सांप की तरह जहरीला है। बल्कि बहरान तो एक शफाफ आईना है जिसमें कौमों का अक्स देखा जा सकता है, जहाँ कौमें पहले से ज्यादा तरक्की याफ्ता नजर आती हैं। जनाबे सर, तो तमाम वाक़यात को मंजरे अमीक देखने के बाद मुझे कहने में कोई उज़र नहीं कि बहरानों में कौमें पैदा होती हैं ना कि मर जाती हैं। हम बात करें दलाइल से तो रद्द होती है,
हम बात करें दलाइल से तो रद्द होती है, उनके होंठों की खामोशी भी सनत होती है। गुजर जाता है मेरे सर से पानी की तरह, जानता भी है कि बर्दाश्त की एक हद होती है। शुक्रिया। अब चौधरी असगर अली जट साहब को हम स्टेज पे इनवाइट करेंगे और असगर अली जट साहब का एक छोटा सा इंटरव्यू है। चौधरी असगर अली जट साहब अभी स्टेज पे तशरीफ लाएंगे और इनसे हमने कुछ प्यारी प्यारी बातें करना है। सारे लोग कह रहे हैं कि बाकी सारे मेहमानों का इंटरव्यू और असगर अली जट साहब को आप इंटरव्यू ना करें, मजा नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे खैरियत से हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इज्जत बख्शी, आप तशरीफ लाए। थैंक यू थैंक यू। तो ये दस्तूरे जुबान बंदी, ये दस्तूरे जुबान बंदी अजब है तेरी महफिल में। यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी लबकुशाई से अहले विद्यानी समाज फरमाएंगे कि क्या पाकिस्तान दहशतगर्द और जालिम मुल्क है। हमारे मुल्क को आजाद हुए 64 बरस हो गए। 64 बरस पहले हमारा वतन एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पे जाहिर हुआ। वो आजादी की दर्दनाक दास्तान हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि दर्द को हरफ बनाना मुश्किल तरीन अमल है। मगर जनाब वाला, हमारा मुल्क तो आजाद होकर भी आजाद नहीं। यूं तो हर रोज ही इस धरती पर रात के बाद सहर तलू होती है और सूरज की चमकती शुआएं आंखों को खीरा करती हैं। चांद भी हस्बे मामूल अपनी किरणें बिखेर रहा है, मगर फिर भी अंधेरा है। जहालत का अंधेरा, बेराहरवी का अंधेरा, मजालम का अंधेरा और दहशतगर्दी का अंधेरा। दहशतगर्दी, अस्करियत पसंदी ने और अमन अमान को महफूज कर दिया है। मुल्क दुश्मन आलमी ताकतों ने इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क को इस्लाम ही के नाम पर खत्म करने का जो एजेंडा तरतीब दिया है और वादे समूह के थपेड़े दामने दिल तक आ पहुंचे हैं। आखिर हम कहां तक बेहिसी और बेबसी का मुजाहरा करेंगे? कब तक दुश्मनों की दुश्मनाम तराजियों में चुपसाते रहेंगे? इस्लाम और मुसलमानों की तज़हीक को खंदा पेशानी से सहने की आदत कब तक करेंगे? जरा सोचिए, इस मुल्क को दहशतगर्द कहा जा रहा है जिसके वो नौजवानों ने इस्लाम के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर अपने बदन कटवाए, जिसकी माओं ने अपने जिगर गोशों को खून में नहाते देखा। उन्हें मुस्लिम की इंसानी, लाशों के अंबार, बच्चों की यतीमी, औरतों की अस्मत दरी, नहाते मुसलमान नौजवानों की लाशें हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पेशानी पे सजी हुई है। जनाबे वाला, जरा सोचिए कि हमारे मुल्क के नौजवानों को, औरतों को, मर्दों को, बच्चों को दहशतगर्द बनाने वाला कौन है? मुल्क दुश्मन ताकतें, बर्तानिया, अमेरिका, डेनमार्क, अफगानिस्तान या फिर नॉर्वे? ये सब बाद की बातें हैं, पहले अपने गिरे पांव में झांको। अमल की सूखती रग में जरा सा खून शामिल कर। मेरे हमदम, फकत बातें बनाकर कुछ नहीं मिलता। क्या मेरी जुबान मेरी तलवार से ज्यादा कारगर हो सकती है? क्या अल्फाज उन अमली कुर्बानियों के बराबर हो सकते हैं? और दुख की लहर जो मेरे सीने से उठकर मेरे जहन में ताश पैदा करती है और फिर थोड़ी देर के बाद ढेरों मसाइलें जिंदगी में गुम हो जाती है, भला उस जज्बे के बराबर कभी हो सकती है जो मैदानों में ले आता है और अमला होकर भी सफर दर सफर पर मजबूर रखता है? जनाबे वाला, मैंने सोच रखा था कि अब मेरा कलम, मेरी जुबान इन मुर्दा दिलों को झंझोड़ने के लिए नहीं उठेगी कि जिनके चंद आंसू गालों से ढलक कर सफों पे
करने वाले, जलसे जुलूस कराने वाले और मजाहरे करने वाले अगर ये समझते हैं कि वो हक पर है तो वो गलती कर रहे हैं, और ये वो फाश गलती है जिसे एक बार नहीं सैकड़ों बार दोहराया जा चुका है। ए हवाओं, ए फिजाओं, हर हुकूमत खाने के दरवाजे पे फतह नवीद सुना दो, उन्हें बता दो कि दुख्तराने इस्लाम के दिलों से वो जज्बे मिटे नहीं कि उनके जीते जी मर्द घरों में मुकीम हो जाएं। वो देखो वो निकल पड़े। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर उठे जाने वाले एक भी हाथ को ये ढेरों मज़ामीन, मुकालमे और बेशबहा जज्बों में डूबे अल्फाज एक भी हाथ को रोक सके हैं? जवाब दीजिए। सबके जिस्म फलाद के तो नहीं, उनके भी माँ बहन भाई खानदान सब कुछ है। उनका दिल भी अपने प्यारों से मिलने को तड़पता और जुल्म की उस समाज का से भाग जाने को चाहता है। जिनके दिलों में ममता का जज्बा है वो सिर्फ एक लम्हे को खमसा की कुर्बानी सोचें और फिर बताएं कि हम रोज ये जुल्म की दास्तानें पढ़ते हैं और सिर्फ इसीलिए आंसू बहाकर खामोश हो जाते हैं कि हमारे दिलों से वो जज्बा इनका है। अगर ये उम्मत तौहीद है तो इस उम्मत के बेटे आपके भाई ही नहीं, इसकी बेटियां आपकी बहनें ही नहीं। एक वो जमाना था कि जब एक मजलूम बहन की पुकार पर 17 साल मोहम्मद बिन कासिम शोले जवाला बनकर लपका और शैतानी किरदारों को जलाकर राख कर डाला। लेकिन आज का नौजवान अपनी कौम और मिल्लत की बेटियों को बेआबरू करके और उनका तमस्खुर उड़ाकर अपने आप को हीरो समझता है। आज का नौजवान इंसान ही के लिए दर्दनाक अजाब पैदा कर, उजालों से दूर दूर उतनी ही रोशनी में सितारों से छीन लूं, जितने गरीब तन है लिबासों से बेनियाज, उतनी ही चादरें में मिजारों से छीन लूं। इतनी तो जुर्रतें हो मेरी कम से कम बुलंद, शाहों के तख्त फकत इशारों से छीन लूं। थैंक यू वेरी मच। दैट इज अस्मा कमल। तो हमारे सेकंड लास्ट पार्टिसिपेंट हैं मोहम्मद मनान। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मेहमानान गिरामी और मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकशाई का मौका मिला है वो है कि हम आजाद हैं। मैं इसकी भरपूर मुखालफत करता हूँ। मेरे नजदीक हम से मुराद आज के 95% आम शहरी आम इंसान है। वो लफ्ज़ आजाद आजादी से लिया गया है जिसके मायने हम अपनी जिंदगी गुजारने में खुद मुख्तार हैं। वो लफ्ज़ है, इजहार है आज के जमाने का, आज के माहौल का। जनाब सदर, हमारे इस मुल्क में सिर्फ जगीरदार, सरमायादार, वडेरे, मुफादपरस्त सियासतदान ही आजाद हैं जिन्होंने इस मुल्क को अपनी जगीर और अवाम को अपना गुलाम समझे रखा है। अगर यही आजादी है कि अवाम के गले पर छुरी फिरती रहे, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पमाल किया जाता है, भाइयों की बेटियां उनके शिकतों में पहुंचती रहे, बच्चे तालीम से महरूम रहे, तो मैं ऐसी आजादी को साथ सलाम पेश करता हूँ। जनाब सदर, हमारे इस मुल्क में हाँ वो आजाद है, वो आजाद है कर्जे माफ कराने में आजाद, वो आजाद है अवाम को लूटने में आजाद, वो आजाद है अपनी मर्जी के फैसले करवाने में आजाद, वो आजाद है एनआरओ को बरकरार रखने में आजाद। वो जब चाहे हम गुलामों पर टैक्स लगा दें, अगर हम अदालतों की तरफ रुजू करें तो फिर भी वो आजाद है। तो वो टैक्स का नाम बदलकर फिर टैक्स लगा दें और अदालतें सुमन बकमन खमोश तमाशाई बने रहे। जनाब सदर, हम आजाद नहीं हैं कि हमारे इस मुल्क में जहाँ खुद मोहब्बत की हुक्मरानी होनी थी वहाँ निफाल, सबायत और लसालत की हुक्मरानी की गई। जहाँ अमन सुकून की तमन्ना थी वहाँ दहशतगर्दी और तशद्दुद का राज है। अज़मतें फ़रियाद ताल ताल कर दी जाती हैं। मुसलमान ने बच्चे रिज़्क़ के हसूल के लिए बेकार कैंपों का ईंधन बने रहे, सरमायादारों के शिकतों के लिए गरीबों का लहू चूसा जाता रहा। ये हमारा जहन, जज्बात, कलम, जुबान और सबसे बढ़कर के हमारी मैशियत आजाद है। नहीं जनाब सदर, नहीं। यहाँ तो बोलने पे पाबंदी, सोचने पे तज़ीरें, पाँव में गुलामी की आज बेहद जंजीरें, आज दर्द आखिर है तो चंद लोगों की, दिन चंद लोगों का, आज चंद लोगों की, उठ के दर्दमंदों के सुबह शाह बदलो भी, जिसमें तुम नहीं शामिल वो निजाम बदलो भी। जनाब सदर, इस्तेसाल और करप्शन का जहर कौम की रगों में उतार दिया गया है। तुम जियो हजारों साल, तुम खाते जाओ माल, तुम खींचो सबकी काल, तुम तोड़ दो सारे जाल, फिर चलो सियासी चाल, हासिल करो कमाल, कानून तुम्हारी डाल, फिर जियो हजारों साल, फिर जियो हजारों साल।
کہا جاتا ہے کہ جمہوریت میں عوام آزاد ہوتے ہیں مگر صرف ووٹ ڈالنے کے لیے، اس کے بعد نہیں اٹھائے پھرو اپنے ووٹ۔ میں دیکھتا ہوں کس طرح اسلام کا گوٹ مکاری منافقت اور دورے میں آئی کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ یا تو انقلاب بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ انقلاب عظیم کی بات کرو، اعتصام کی نہیں، انتقام کی بات کرو۔ جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جو دھرتی خوب اگلتی ہو، جو دھرتی خوب اگلتی ہو، جہاں دکھ فلک سے گرتا ہو، جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پر پالے جاتے ہوں، جہاں سچائی کے مجرم بھی زندہ میں ڈالے جاتے ہوں، جہاں مظلوموں کے خونوں سے میل اپنے دھوئے جاتے ہوں، یہ مٹی دیش کی برسوں سے دکھ جگر پہ سہتی ہے۔ وہ اپنے دیش کے لوگوں کو جشن آزادی مبارک کہتی ہے، جشن آزادی مبارک کہتی ہے۔ اور آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میرے خوابوں کو چھینا ہے کسی نے، میرے خوابوں کو چھینا ہے کسی نے، میں سب کی بے عزتی پر مرتد ہوں۔ میرے لہجے میں سچ گواپن ہے، میں پاکستان کی زندہ نسل ہوں، پاکستان زندہ۔ This was Muhammad Manan, and now I am going to invite our last participant, that is Ali Haider. Our last participant, Ali Haider. Please put your hands together. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر عالی مرتبت، ارباب علم و دانش اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ موضوع گفتگو ہے قلب میں سوز اور روح میں احساس۔ جناب صدر، قلب میں سوز اور روح میں احساس انسان میں سوچ کو جنم دیتا ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا انسان صرف لندن اور نیو یارک میں بستے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ کیا صرف لندن اور نیو یارک میں بسنے والے انسان ہی معصوم اور بے گناہ ہیں؟ کیا کسی گورے ٹوم ڈگ اور ہیری کی لاش ہی انسانیت کی توہین ہے؟ کیا کسی جم چم اور بش پر کی گئی کاروائی ہی دہشت گردی ہے؟ کیا صرف امریکی اور برطانوی مائیں ہیں؟ کیا صرف گورے اور سرخ بچے ہی بچے ہیں؟ کیا صرف انگریزی بولنے والے ہی انسان ہیں؟ کیا صرف سرخ ہونٹوں سے نکلنے والی چیخیں ہی چیخیں ہیں؟ اور کیا صرف برطانوی جسموں کی تکلیف ہی تکلیف ہے؟ سوچنے کی بات ہے جناب صدر، سوچنے کی بات ہے جناب صدر۔ کیا افغانی کا لہو لہو نہیں؟ کیا سوڈان کے بچے بچے نہیں؟ کیا غزہ اور اس کے مغربی کنارے کی مائیں مائیں نہیں؟ کیا بغداد اور موصل کے مظلوموں کی لاشیں لاشیں نہیں؟ کیا ماں کو بے جان کر کے اس کے ماں کو بے جان کر کے اس کے معصوم کی دونوں پاؤں کو پکڑ کر چیر دینا درندگی نہیں؟ اور کیا ایک ماں کے معصوم کو بے جان کر کے اس کے دونوں پاؤں کو پکڑ کر چیر دینا درندگی نہیں؟ اور کیا مسلمان قیدیوں پر کتے چھوڑ کر ہنسنا انسانیت کی توہین نہیں؟ سوچنے کی بات ہے جناب صدر، سوچنے کی بات ہے جناب صدر۔ سوچنے کی بات ضرور ہے مگر اب سوچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا قلب سوچ اور احساس روح تو مٹ چکا ہے۔ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ اگر اسپین میں مسجد کے رکھوالوں کو گٹاروں کی ضرورت نہیں آتی ہے تو کوئی بات نہیں، مگر تم گھر میں آرام سے بیٹھ کر اسپینش گٹار سنتے رہو۔ اگر امریکی کنٹینروں میں بند طالبان ایک دوسرے کا خون پی کر زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو کرتے رہیں، مگر تم منرل واٹر سے منہ دھونے کو کلچر کا نام دیتے رہو۔ اگر ماؤں اور بہنوں کے دامن تار تار ہیں تو ہوتے رہیں، مگر تم کیبل کی تار لگاؤ اور انڈین گانے سنتے رکھو۔ اگر عزتیں لوٹتی ہیں تو لوٹتی رہیں، مگر تم بسنت پر کٹی ہوئی پتنگیں لوٹتے رہو۔ اور اگر مسلمانوں کی قبروں پر پڑے ہوئے پھول مرجھاتے ہیں تو مرجھاتے رہیں، مگر تم ویلنٹائنز ڈے مناتے رہو، جشن مناتے رہو، جشن بہارا مناتے رہو۔ تم نے دیکھا ہے منڈیروں پہ چراغوں کو فقط، تم نے دیکھا ہے منڈیروں پہ چراغوں کو فقط، میں نے ہر دور میں جلتا ہوا انسان دیکھا ہے۔ جناب صدر، اپنوں کو لگائے ہوئے زخم دکھانا مشکل تو اوروں کے قصے کیا چھیڑوں؟ وہ ابابیل کے لشکر اور وہ فرشتوں کا گروہ ہم جیسی بے یقین اور بے ایمان قوموں کے لیے نہیں آئیں گے۔ یہ وہ قوم ہے جہاں ایک ماں اپنے 3 دن کے بھوکے معصوم بچوں کو صرف اس لیے قتل کر دیتی ہے کیونکہ وہ معصوم روٹی مانگتے تھے۔ چند لمحوں کے لیے محسوس کیجئے کہ جب وہ ہمسایوں کے گھروں سے اٹھنے والے کھانے کی خوشبو ان کے خالی میدوں میں آگ لگا رہی تھی تو تب اس ملک کے لٹیرے رئیس حکمران
होटलों में चाइनीज खाना खा रहे थे, और जब वह माँ अपने कांपते हुए हाथों को फौलाद बना रही थी तो तब इस मुल्क के हुक्मरान इस मुल्क और कौम की लूटी हुई दौलत से कोठियां और हवेलियां तामीर कर रहे थे। और जब वह माँ अपने मासूम की गर्दन पर छुरी चलाते हुए ममता का कलेजा कुर्बान कर रही थी तो तब इस मुल्क में बच्चों के कीमत 50-50 बकरों की कुर्बानियां की जा रही थी। और जब वह मासूम लहू में तरगरम छुरी की दार महसूस कर रहा था तो तब इस मुल्क के एनआरओ ज़दा हुक्मरान लाखों और करोड़ों की शराब उंडेल रहे थे, उनके घोड़े मुरब्बे और उनके कुत्ते पिज्जा खा रहे थे। फिर मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर आती नहीं। जनाबे सदर, सोचने की बात तो ये है कि हम जुल्म तो सहते हैं मगर बगावत नहीं करते। मुझे शिकवा उन एनआरओ ज़दा हुक्मरानों से नहीं, मुझे शिकवा इस अपनी कौम से है जिसको इंतखाब करने का शऊर भी नहीं। उठो और एहसास करो कि ना तो अफगानिस्तान की माँ की खुश्क आंखों का कर्ज माफ किया जाएगा और ना ही ईरान की बेवा की सूनी कलाइयों पर टपकने वाले आंसुओं का। उठो कि तुम्हें कसम है फिर से रोनमा होते हुए करबला की, उठो के सर उठे तो सही जुल्म के सामने, मेरी डाली पे वक्ते हिसाब आएगा और इन्हीं गरीबों के दरबार में हाथ जोड़े हर एक नवाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। वस्सलाम। हमारा एक छोटा सा बच्चा है आसिम, मोहम्मद आसिम, वो 3.5 साल का, वो कह रहा है मैंने भी स्पीच सुनानी है जो मुझे नहीं बोला स्पीच सुनाई, तो उसकी स्पीच सुन लें यार हम। तो मोहम्मद आसिम को हम स्टेज पे इनवाइट करते हैं, उसके लिए भरपूर तालियां हो जाएं। मोहम्मद आसिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर और मौजूद ख़वातीन हज़रात, आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ाई करने का मौका मिला है वो है धरती आफत। धरती आफत ने कभी सी मजबूरी का ख्याल न किया और न कभी किसी बादशाह की आदेशों का एहतराम किया। नबी सदर, तो मुझे कहने दीजिए कि अदलो इंसाफ पर हशर पर महदूद नहीं, जिनकी खुद गुनाहों की सजा बनती है। और आखिर में बस यही कहूँगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा है और न हो। वस्सलाम। पाकिस्तान पे बहुत शुक्रिया जी। तो मज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, शो के एंड है। अवेनिसी शो हुआ, बड़ा हल्ला गुल्ला किया होगा आप लोगों ने, कुछ लोग थोड़े फेडअप हुए कि उस वजह से कि कुछ प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन लास्ट में होगा यूं कि बच्चियों के रिजल्ट से पहले एक भंगड़ा हो जाए जी। तो अभी देखते हैं मोहम्मद अली को, अली मुस्तनसिर को मैं स्टेज पे इनवाइट करता हूं एक बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस के लिए। छट दुनिया को दुनिया तो देगी ज्ञान, छोटे से तो जान काहे रहे परेशान, छट दुनिया को दुनिया तो देगी ज्ञान। बनना है तुझे महान तो ये मंत्र पढ़ ले ओ भैया, आलतू जला तू खाई बड़ा कोटा तू, टेंशन वेंशन छोड़ बच्चा हो जा पूरी फालतू, छोड़ बच्चा हो जा पूरी फालतू।
इसके फौरन बाद हमारे एक और डांसर हैं, वो कह रहे हैं जी हमें डांस करने का मौका दिया जाए, और अगर मैं डांस नहीं करूंगा शायद आपके शो में कोई कमी रह जाएगी। मैंने कहा यार बात तो आपने सच्ची की है, तो अगर आप डांस नहीं करेंगे दस क्यों से नहीं आएगी, तो यार हम क्यों किसी का दिल तोड़े। वो जिंदगी में सारे गुनाह किए लेकिन कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। तो मैं कहता हूँ यार आज ये एहसास क्यों अपने आप से छीनूं, इसलिए हमने हमारे वकास हैं वो अच्छे, आपने वो माइकल जैक्सन तो देखे हैं? अच्छा ये दूसरा बुरे वाला का माइकल जैक्सन है। 5, 6, 7, 8. So baby. नहीं बढ़िया। मेरी कोशिश यही होती है कि सब लोग पूछ जाए। मैंने पहले कहा था मैंने जिंदगी में सारे गुनाह किए, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोशिश यही थी कि आपका दिल ना टूटे। आप इसके बाद जो मेरा दिल टूट रहा है वो तो अलग सी बात है ना, लेकिन ये अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत अच्छा डांस था जी, इनके लिए भरपूर क्लैपिंग। This is the end of the show, but really I wanna say I enjoyed a lot. आप बहुत स्वीट लोग हैं, बहुत आला लोग हैं, बहुत पायदार लोग हैं, और मुझे यहाँ शो करके बड़ा मजा आता है। कहीं भी शो करूं, किसी भी शहर में करूं, कोई चस नहीं आती, लेकिन मेरे अपने लोगों के दरमियान मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन चस बहुत आती है, मजा बहुत आता है, एंजॉय बड़ा करता हूं। तो खैर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 6 घंटे बोलने के बाद भी मैं बिल्कुल ताजा दम हूं, और मेरा दिल करता है कि मैं तो कुछ 2 घंटे और बोलता रहूं, लेकिन क्या करें, तुझसे भी दिल फरेब है, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है हम रोजगार की। तो विदाउट एनी लेट 3rd पोजीशन विनर है किंसा तारिक।
Please put your hands together to appreciate Kinsa Tariq. And second position holder हैं ज़िशान तारिक. यहाँ तारिक ही हो रही है आज तो खैर ही हो. और फर्स्ट पोजीशन होल्डर है अली हसन. And the grand competition, the result is going to announce, and third position holder is, oh sorry, first of all I will announce the honorary prizes. हमारे जजेस ने 2 ऑनरी प्राइजेस दिए हैं, जिनमें पहला है रिदा नोट. वोटफुल क्लैपिंग स्टेज पे आ जाएं. ये बच्चियां जजेस साहब कह रहे थे कि बहुत अच्छा मटेरियल था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कुछ तलफ्फुज की वजह से या उनकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से वो बच्चियां पोजीशंस नहीं ले सकी या वो थोड़ा अड़ी उनमें प्रॉब्लम्स आए. तो इनको आप जरूर ऑनर में प्राइज दें कि बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. और दूसरे हमारे ऑनरी प्राइज लेने के लिए हैं जवेरिया नसीर. अब क्लैपिंग तो किया करें यार, क्या कहोगे आपको. एंड थर्ड पोजीशन होल्डर इज कंवल इकबाल. एंड सेकंड पोजीशन इज गोइंग टू अस्मा कंवल. एक तरफ तारिक और दूसरी तरफ कंवल. अल्लाह खैर हो जी. And today hero, and today star, today 5 star, today 3 star, and आज कोई 8 स्टार भी हो जाए. उस बच्ची ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. उस बच्ची ने वाकई सारे ऑडियंस के दिल जीत लिए. The language in which the procedure, the language, the क्या यार accent, they are so excellent. I have no words to describe it. All the things was so excellent, so beautiful, and the everything was so excellent. And इंतजार कराने के बगैर आपकी भरपूर तालियां चाहिए उनके लिए. कैक्शन चपार. तो छोटे कंपटीशन से तीसरी पोजीशन लेने वाले हैं किंजा तारिक को प्राइज राजा है. मेरे बाबा जानी के हाथों प्राइज दिया जाएगा किंजा तारिक को. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर किंजा तारिक. एंड द थर्ड पोजीशन फ्रॉम ग्रैंड कंपटीशन, दैट इज अस्मा कंवल. Oh sorry, कंवल इकबाल. This prize is going to Kamal Iqbal, a very beautiful bag. Kamal Iqbal. No honorary prizes. हाँ जी. और ग्रैंड कंपटीशन से पहला जो ऑनरी प्राइज दिया गया है रिदा नूर. प्राइज छोटा भी हो लेकिन प्राइज लेना, स्टेज पे आके बोलना, मौका मिल जाना, मैं कहता हूं सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है. तो उसके बाद है जवेरिया नसीर. ऑनरी यार प्राइज ऑनरी. आज सेकंड पोजीशन होल्डर हैं ज़िशान तारिक. बच्चे को भी सूट दें यार अच्छा सा. रहमान कलाद हाउस की तरफ से ये सूट इनको प्रेजेंट किया जाता है. ज़िशान तारिक, आप भी कल अपने बच्चों को लेके आइए. बहुत सारे इनामात, बहुत सारे सूट. और यहाँ से सेकंड पोजीशन वाले, बल्कि यहाँ से फर्स्ट पोजीशन अली एहसन फर्स्ट पोजीशन होल्डर, इन्हें भी अच्छा सा सूट दें. रहमान कलाद हाउस की तरफ से हमारे अली एहसन को सूट दिया जा रहा है. अली एहसन
first position holder. And second position holder from grand competition, Asma Kanwal. Asma Kanwal को लेडी सूट दीजिए प्रिंस क्लॉथ हाउस की तरफ से। प्रिंस क्लॉथ हाउस जो हमारी पता नहीं हमारी डिजाइनर इधर है कि चले गई हैं। डिजाइनर ने कहा था वो जो 1900 रुपए का है वो सूट बच्ची ने जीत लिया जी। उसके बाद हमारे फर्स्ट पोजीशन होल्डर आज की 8 स्टार कैक्शा जबान। फर्स्ट बार क्लैपिंग की कैक्शा जबान। बस बस आंखों को मन्नतें पूरी तुमसे ही। अच्छा मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इतने सारे नाम दिए, एक बच्ची है रिदा नूर, ये मेरे शो में बड़े शौक से आती है और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था। मेरी तरफ से इस बच्ची को एक इनाम दे दें प्लीज। ये वाला जो इनाम है ना मेरी तरफ से दे दें रिदा नूर को। रिदा ये आपके ऑनर में मेरी तरफ से एक और इनाम है। आप बहुत अच्छा बोलते हैं और मैं आपको फ्यूचर में देखना चाहता हूँ कि आप बहुत ऊंची डिबेटर बने। दिस इज माई स्टूडेंट एंड और ये मेरे लिए ऑनर है कि रिदा नूर मेरी स्टूडेंट है। एंड देयर इज अ प्राइज फॉर ज़ारा यूसुफ। वेयर इज ज़ारा यूसुफ? अलूर बुक डिपो से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कैश प्राइज ज़ारा यूसुफ को देंगे। माशाल्लाह 500 रुपीज। इनके लिए क्लैपिंग। अलूर बुक डिपो। ज़ारा मुझसे एक प्रॉमिस करोगी, आपने जब भी पेन पेंसिल लेना अलूर बुक डिपो पे जाना। वादा करिए। वादा नहीं कर सकती मगर कोशिश करें। अरे अल्लाह कर दे ना, कोई नहीं कर दे यार। उन्होंने 500 रुपए दिए और आना है और मेरे पीछे तो नहीं आने लगी। थैंक यू वेरी मच। ये बाबा जाने अल नूर बुक डिपो से ज़ाहरा यूसुफ के लिए 500 का इनाम है। आप भी यहाँ खड़े हो जाइए। अभी मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा हमारे बुरेवाला की हस्ती जनाबे महमूद गजनी साहब का कि ऐसा जज वो यहाँ तशरीफ लाए। मैं जनाबे महमूद गजनी साहब को भी स्टेज पे इनवाइट करूंगा और फखरुद्दीन राजी साहब को भी कि वो सिर्फ एक मिनट में शो के बारे में जो कहना चाहेंगे, सिर्फ एक दोनों सर तशरीफ लें। हाँ यार हमारा एक बच्चा पोजीशन होल्डर मोहम्मद आसिम तो रह गया, स्टेज पे बुलाएं। हाँ वो अपना इनाम दे। मोहम्मद आसिम। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद आसिम के लिए प्राइज। अच्छा जी, उसके बाद जनाब महमूद गजनी साहब और फखरुद्दीन राजी साहब स्टेज पे आएंगे और शो के बारे में आप लोग यहाँ खड़े रहेंगे। आप लोग हमारा मान है, आज की शो की जान है। आप लोग पोजीशन होल्डर है ना। फखरुद्दीन राजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चंद अल्फाज में जनाबे महमूद गजनी, सॉरी द मोस्ट सीनियर पर्सन इज देयर, जनाबे महमूद गजनी साहब हमारे बुरेवाला का फख्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन शार्ट मैं यही अर्ज करूंगा कि मुझे इस बात पर फख्र है कि मैंने भी आबिद नसीर की थोड़ी सी तरबियत की है और मुझे इस बात पर फख्र है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं आबिद नसीर को कि ये शो माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा। बहुत बहुत मुबारकबाद। Thank you very much, sir. Now I am going to invite for some words जनाब फखरुद्दीन राजी साहब from टेस अकेडमी एंड अस्करिल्लाह कॉलेज, तकरीबन हर कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ाते हैं, जनाब महमूद फखरुद्दीन राजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों ने तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया। हमारे लिए फैसला करना खासा मुश्किल था। मेरे साथ मेरे सीनियर जनाब महमूद गजनी साहब थे और बाद जगह पर तो हमें बड़ी तकलीफ हुई कि बच्चियां एक एक लफ्ज पर थोड़ी सी मार खा गईं। बहुत अच्छा मामला था, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। जहां तक आबिद नसीर साहब का ताल्लुक है, गजनी साहब ने थोड़ी सी तरबियत की होगी, मैंने तो भाई काफी की है। ये वाहिद स्टूडेंट था जिसके सिलसिले में मुझे बड़े तल्ख तजर्बात से गुजरना पड़ा। यानी उस्ताद तालिबिनों को पढ़ाता, ये मुझे पढ़ाना शुरू कर देता था। सिर्फ 3 माह मेरे पास फारसी पढ़ी और 200 में से 189 नंबर इन्होंने हासिल किए। और इनके अंदर उस वक्त भी ये जरासीम पाए जाते थे जो फल फूल कर अब बीमारी की शक्ल इख्तियार कर गए हैं और ये वो बीमारी है जो खत्म होने वाली नहीं है। इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इस किस्म के प्रोग्राम जो कि हैं वो जारी रहने चाहिए, लोगों की तफरीह का बायस हों
बच्चों की सलाहियतों को निखरने का मौका मिले, लोग मिल बैठें और ये जो माली दौर आया है, कश्मकश का, ज़हनी टेंशन का दौर आया है, तो इसमें थोड़ी सी तफरी मिल जाए। मेरा ख्याल में तफरी देने वाले साहिब कमाल होंगे और उनका ये प्रोग्राम शायद उन्हें माली मफाद हो या ना हो, लेकिन उनकी नेकियों में ये जरूर शुमार होगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ क्या कहूँ यार, कुछ कहने के लिए इतना एक्साइटेड हूँ, पता नहीं मेरे टीचर्स ने क्या क्या कह दिया मेरे बारे में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए, आप लोगों ने इतना सारा टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे इंशाल्लाह फजल खुदा। विद इन सम टाइम आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ न्यू फंक्शन, न्यू आबेनेसी शो, अ न्यू शो। ओके, इंशाल्लाह बिल्कुल डिफरेंट होगा इससे, लेकिन उसमें ऐसा करूंगा कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स आई वो सारी खत्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच। और अरोमा रेस्टोरेंट का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, अरोमा रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। अल खलीक मूवी मिक्सर हमारे स्पॉन्सर, अल खलीक वालों से सारे आप शो की पिक्चर्स ले सकते हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं। अल्लूर बुक डिपो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे साथ, और इसके अलावा हमारे जनाब रियाज साहू साहब, हाजी जमील साहब यहाँ तशरीफ फरमा रहे, उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया। बाबा जानी का बहुत ज्यादा शुक्रिया। जनाब महमूद गजनी साहब, जनाब फखरुद्दीन राजी साहब, जनाब एडवोकेट अब्दुल समद साहब, और तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, और 553 से जनाब खाविर साहब, उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, और हमारे खुर्शीद भाई उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। सारे लोगों ने मिल मिला के, मेरी पूरी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत के साथ इस शो को कामयाबी बनाया। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट शो विद इन नो टाइम। Always be happy, always be courteous, and always be honest. Inshallah, we will meet at the next show. Okay, Allah Hafiz and Fi Amanillah.